بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ صدارت نواز عباسی یوٹیوب چینل. آج جس سوشل ایشو کو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہماری جو معیشت ہے، جو معیشت کے مین ستون ہیں، جو اس کے پلرز ہیں، وہ کس طرح جو ہے وہ سموتھ ورکنگ کریں تو پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری بن سکتا ہے. ایک جو ہے وہ کنسسٹنٹ گروتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے ٹارگیٹڈ کو اچیو کر کے تو جو جس معاشی بحران کا بھی ہم شکار ہیں یا جو اکنامک ڈیزاسٹرز اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہر شعبہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کی طرف جا رہا ہے، ہر شعبہ جو ہے وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو کس طرح ہم اوور کم کر سکتے ہیں. کسی بھی ملک کی جو ترقی کا راز ہوتا ہے وہ اس کے سب سے امپارٹنٹ جو ریسورس ہوتا ہے وہ اس کا ہے ہیومن ریسورس. لوگ، انسان جو اس پہ کام کریں گے. آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو، آپ کے پاس را مٹیریل موجود ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کے انسٹرومنٹس موجود ہوں، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو، لیکن جن لوگوں نے کام کرنا ہے، جن لوگوں نے اس معاشی ترقی کو جو ہے وہ بوسٹ کرنا ہے، انکریز کرنا ہے، اس میں اضافہ لے کر آنا ہے، وہی اگر کام والے نہ ہوں تو اس سے جو ہے وہ آپ ڈیزائرڈ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو ہیومن ریسورس اگر ایکسپرٹ ہوگا، اگر ٹرینڈ ہوگا، اگر اسکلفل ہوگا، اگر جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ جو اس کی جو ایک پیرامیٹرز ہیں، اگر ان کے متعلق اس کا جو ہے وہ نالج ہوگا، جو ہے ایک ٹرینڈ شخص جتنا اچھا کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے، انٹرینڈ شخص کو اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہر شعبے کے اوپر بیٹھنے والے بندہ جو ہے وہ اس پوسٹ سے ریلیٹ نہیں کرتا. وہ اس کی جو پوسٹ بنتی ہے وہ اس پوسٹ کے لائق ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک مینیجریل پوزیشن پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اسٹرکچر کو، پوری ہرارکی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک بھی جو ہے وہ چند خوشحال ممالک کی لسٹ میں شامل ہو جائے، ڈیولپڈ ملک بن جائے، ترقی یافتہ ملک بن جائے، تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ آپ سکلڈ اور ٹرینڈ لیبر لے کر آئیں، ٹرینڈ لوگ لے کر آئیں، سکلفل لوگ لے کر آئیں، بامقصد لوگ لے کر آئیں، پرپز فل لوگ لے کر آئیں. ایسے لوگ لے کر آئیں جو ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ والنٹیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا صرف ایک مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ اپنے جو پرسنل ریسورسز ہیں ان کو انکریز کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے، پراسپیرٹی کی طرف جائے، ہمارے لوگ جو ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو، ان کی جو ہے وہ زندگی خوشحالی کی طرف جائے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ جب ایک پڑھا لکھا انسان آئے گا تو وہ اپنے دماغ کو استعمال کرے گا، وہ جو ہے وہ اپنے پریویس ایکسپیرینس کی طرف جائے گا، اور وہاں جا کر وہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی ایبلٹیز کو وہاں پر لگائے گا جہاں سے آؤٹ پٹ کا چانسز زیادہ ہوگا. تو سب سے امپورٹنٹ پلر جو کسی بھی اکانومی کے لیے ضروری ہے، جو کسی بھی ملک میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے، انکریز کرتا ہے، اس کے لیے وہ ہے ہیومن ریسورس. انسان، شخص، ورک فورس، لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مینیجریل پوزیشن سے لے کر چھوٹی پوزیشن سے لے کر اوپر پوزیشن تک یہ لوگ ہونے چاہیے. نمبر 2 جو دوسرا بہت امپورٹنٹ پلر ہے وہ ہے فزیکل کیپٹل. آپ کا جو سرمایہ ہے، آپ کے پاس اس مقدار میں سرمایہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس کیپٹل اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب کسی پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں، آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کر آئیں، آپ جو ہے وہ روڈز کے پروجیکٹس لے کر آئیں، آپ جو ہے وہ اپنے مختلف قسم کے جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں یا ان میں بیٹرمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کیپٹل. اور کیپٹل جو ہے وہ مختلف سورسز سے حاصل ہوتا ہے. مختلف سورسز سے مطلب جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے کیپٹل کو جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے. مختلف قسم کے اب تو ایک چیز پر جو ہے وہ جو جنرل پبلک ہے وہ ٹیکس پے کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یا تو وہ پیسہ یوٹیلائز ہو نہیں رہا یا اس کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کیا نہیں جا رہا، کیونکہ اس کے لیے بھی ریسرچ چاہیے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف ریسرچ سینٹرز ہونے چاہیے کہ کن شعبوں میں ہم اپنے پیسے کو زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں تاکہ ہم
मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करें और मैक्सिमम आउटपुट लेकर आए। मिनिमम जब जिस वक्त हम ज्यादा कैपिटल जब हम मार्केट में फेंकेंगे, मार्केट में जब पैसा चला जाएगा तो लोग उससे फायदा उठाएंगे, लोग उससे उस पैसे को जो है वो क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। वो एक शख्स से सर्कुलेट होकर दूसरे, दूसरे से सर्कुलेट होकर तीसरे, और इस तरह से जो है वो पूरे मुल्क के अंदर वो पैसा फैल जाएगा। उससे क्या होगा, उससे जो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट पे आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, एग्रीकल्चर तरक्की करेगी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस तरक्की करेंगे, आपका जो है वो बिजनेस सेक्टर, आपका ट्रेड सेक्टर जो है वो बूस्ट करेगा, वो जो है वो इंक्रीजिंग पेस के साथ निकलेगा। उससे क्या होगा, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोग खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह इंशाल्लाह एक वक्त आ सकता है कि अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और फिर कैपिटल को वहां इन्वेस्ट करें जहां पर आपको रिजल्ट ज्यादा जनरेट होने का चांस है, तो इससे भी जो है आपका मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो मैं समझता हूं कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहां पर हर तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां पर हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गैस यहाँ पर है, हमारे पास हर तरह की मादनियात मौजूद है, हर चीज हमारे पास मौजूद है। बस सिर्फ उसे प्रॉपर वे में इस्तेमाल करने की जरूरत है, उसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। कंपिटेंट लोग चाहिए, कंपिटेंट जो है वो वेल विशर्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए रेडी हो जाएं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 मौसम मौजूद हैं, हमारे पास जो है वो फर्टाइल लैंड मौजूद है, हमारे पास एक पानी की वाफर मिकदार मौजूद है, हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद है जो बहुत से ममालिक ने शायद कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में देखी तक नहीं होगी। लेकिन क्या है, सिर्फ ये है, एक तो कम्पिटेंसी हमें पीछे छोड़ देती है, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारी करप्शन है, जिसने हमारे जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर शख्स को जिस लेवल पे इस मुल्क को ख़त्म करने, इस मुल्क को लूटने का मौका मिल रहा है, सारे इसको लूट कर खा रहे हैं। तो एक दफ़ा इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, जिस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां देकर इसको हासिल किया है, उस पे हमारा इतना हक जरूर बनता है कि हम उसकी बेटरमेंट के लिए काम करें, हम उसको खुशहाल करने के लिए अपनी जितनी सलाहियतें हम में मौजूद हैं वो हमें ज़रूर अपने अपने शोबे के अंदर रहते हुए वो हमें जो है वो रुज़गार लानी चाहिए। इससे इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे जो कुदरती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं उनको हम बेहतर तरीके से क्या कर सकें, इस्तेमाल करें। और जब हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी और दूसरी तरफ से हमारे पास माशाल्लाह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होंगी, हमारे पास लोग खुशहाल होंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम और उनकी नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही होगी, मुल्क की नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही होगी, हर शख्स जो है वो खुशहाली की तरफ जा रहा होगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है वो चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज की सप्लाई बढ़ेगी तो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। इससे मुल्क जो है वो क्या होगा, खुशहाली की तरफ जाएगा। और सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये हो जाएगी कि सेविंग भी होती रहेगी साथ साथ, तो फिर आने वाले वक्त में हम जो है वो खुशहाली की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये 3 चीज़ें। और सबसे आखिरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ वो होती है अपडेटेड और ऑटोमेटिक बेहतरीन टेक्नोलॉजी। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इन 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट पिलर जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो उनके साथ ज़रूर कंसर्न है। लेकिन चौथी चीज़ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है टेक्नोलॉजी। आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम ग्लोबल विलेज बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा पूरी दुनिया के साथ चंद सेकंड्स के अंदर जो है वो रब्ता हो रहा है, हम जो है वो हर नई चीज़, आने वाली चीज़ को जो है वो अपने मुल्क के अंदर अवेल कर सकते हैं, अपने मुल्क के अंदर लाकर अपने मुल्क की जो है वो खुशहाली में उसका किरदार अदा कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा अपडेटेड हमारे पास मशीनरी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन जो है वो एक तो क्या कहते हैं उसको, लेस कॉस्टली होगी, और दूसरा अप टू स्टैंडर्ड होगी। लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में इसको लेकर जाना, इससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारी इंपोर्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। हम अपनी चीज़ों को बाहर भेजेंगे, बाहर लोग हमारी चीज़ों को खरीदेंगे, उससे हमारा फॉरेन रिजर्व आएगा, उससे हमारे पास पैसा बढ़ेगा, हम जो है वो मुल्क में वो पैसा लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला मुल्क हमारा जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये तो बहुत बड़ा वास्ट
सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मौजू है, इस पर तो जो है वो बड़ी डिटेल से बात की जा सकती है, लेकिन हमें जो चीज़ समझनी और सोचनी चाहिए वो ये चाहिए कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को अपडेट करें, हम अपने बच्चों को सिर्फ वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करें, ना सिर्फ उन बच्चों को हम सिर्फ जो है वो रट्टा लगाएं, बल्कि हम उन्हें प्रैक्टिकल काम करवाने की कोशिश करें ताकि वो स्किलफुल हो सकें, ताकि वो ट्रेंड हो सकें, ताकि वो कल जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस फैक्ट्री में, जिस जहाँ पर भी उनको जो है वो जॉब मिले, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो इतने स्किलफुल होने चाहिए कि वो जो बाहर के मुल्क हैं उनके साथ कम्पिटेटिव मार्केट में जो है वो उनका भी एक जो है वो नाम होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद हमें जो है वो कैपिटल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज सेव करने चाहिए, हमें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा जो है वो फ्रूटफुल तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथी जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को जदीद रखना चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी को हमें ना सिर्फ जदीद रखना चाहिए बल्कि उस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें और इतने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज़ करें कि हम कम वक्त में, कम पैसे में, कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन जनरेट करें। उसके लिए आपको पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज किया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन को। जब ये चारों फैक्टर्स जो है वो आपके काम सही प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, सेविंग इंक्रीज होती है, लोगों का माइंड सेट इंक्रीज होता है, स्पेंडिंग्स बढ़ जाती हैं, एक्सपेंडिचर्स लेस हो जाते हैं क्योंकि आप लेस कॉस्टली चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे सेविंग इंक्रीज होगी, लोग जो है वो अपने पैसे को ना सिर्फ खर्च ही कर देंगे बल्कि वो कुछ पैसे को सेव रख कर दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी उनके पास इनकम आएगी, और इस तरह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा, और एट दी एंड हम जो है वो अपनी ग्रोथ की तरफ और जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आज से 10 साल, 20 साल, 15-20 साल बाद जो है ये मुल्क भी एक बहुत जो है सफ़े अव्वल के मुल्कों में से इंशाल्लाह होगा। इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो हमारी सोच की, हमारे थॉट्स की, हमारे काम ना करने की, हमारा जो है वो सुस्ती की, हमारी कायली की। हम अपने अपने शोबे में अगर आज ईमानदारी के साथ आज से ये जो है वो अज़म कर लें कि हम इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, तो वक्त दूर नहीं जब हम जो है वो तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट से निकल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।